Good morning, students. Class 6, whole number, second chapter, and last exercise 2E, page number 50. This exercise is specially designed on number pattern. So, what is the number pattern? A set of number are given, and we have to find out in the given set of number that what particular rule is followed. So let us start number pattern. Number pattern. One example I am giving here. Let us suppose one set of number is given 2, 4, 6, 8 and 10. This is the set of number is given, and if I ask you please see what particular rule is followed in this set of number so that we can write some more number in this series. So if we observe 2, 4, 6, 8, that is the difference of every next term to previous term, that is 4 minus 2 is equals to 2, 6 minus 4 is equals to 2, then 8 minus 6 is equals to 2. So the difference of next term to previous term is a constant quantity. Everywhere difference is 2. It means if we add this constant or this difference to previous term, that is 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10. So अगर मुझे ये कहा जाए कि इसके नेक्स्ट 2 टर्म 3 टर्म लिखना है तो 10 and 2 12, 12 and 2 14, 14 and 2 16, 16 and 2 18 and so on. So this series followed a special rule, and the rule is that the difference of every next term to previous term is constant. This common difference is same, then this is known as common difference. And in higher class, this type series, there are so many series we can write in which the difference of next term to previous term is constant, then this constant is known as common difference, and such series is known as arithmetic progression. And this first chapter you will learn in class 10th, chapter number 5, that is specially based on arithmetic progressions. Now one more example if we take, let us suppose 2, 4, then 8, then 16, then 32, then 64 and so on. This is also set of numbers which hold a particular rule, means every next term is written on a particular rule. So if we observe that if every next term is divided by the previous term, that is 4 upon 2 is equals to 2, 8 upon 2 is equals to 2, 16 upon 2 is equals to 2, then 32 upon 16 is equals to 2. That is every next term, 4 divided by 2, 8 divided by 4, 16 divided by 8, 32 divided by 16, every time कोई भी दो लगातार नंबर लेकर के अगर नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करूं तो जो डिवीजन आ रहा है वो डिवीजन सब जगह एक जैसा है. दिस डिवीजन इज नोन एज कॉमन रेशो. इसको क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो. अगर किसी सीरीज में लगातार नेक्स्ट टर्म को अगर प्रीवियस टर्म से डिवाइड करूं और वो डिवीजन सब में एक जैसा आ रहा है तो जो भी डिवीजन आ रहा है दैट इज नोन एज कॉमन रेशो. और ऐसी सीरीज को बोलते हैं अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. And this geometric progression as a chapter you will learn in class 11. 11th में इसका एक पूरा चैप्टर होगा. तो एक अपन ने सेट ऑफ नंबर पढ़ा जिसमें एवरी नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस नंबर के साथ डिफरेंस सेम है. एक ऐसी सीरीज पढ़ी जिसमें एवरी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से अगर डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशो सेम आता है.
इस टाइप की सेट ऑफ नंबर को अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहा, और इस टाइप के नंबर ऑफ सिस्टम को जिसमें एवरी नेक्स्ट टर्म को अगर प्रीवियस टर्म से लगातार कोई भी दो नंबर लेकर के अगर डिवाइड करूं और डिवीजन एक जैसा रहता है अप टू एंड तक, तो ऐसी सीरीज को अपन क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रिवर्स ऑर्डर में यहां अपन कह रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको पहले वाली टर्म से अगर मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट जैसे कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 64, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128, और 128 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 256, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 512। इस प्रकार से अपन टिल n तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द number pattern. Now some other logical number system are also given because these are the some special set of number जो higher classes में आप एज ए चैप्टर पढ़ोगे। यहाँ आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत छोटे छोटे सेट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं जिनमें एक पर्टिकुलर रूल जो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्लास 7th के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। अब उनको सीखते हैं अपन। सबसे पहले एक जैसे अपन ने पढ़ा सबसे पहले कि जो नंबर 1 2 3 है लगातार नंबर है, वो अगर जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अपन क्या जानते हैं कि जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आप कर लेंगे, ये भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। हर नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस नंबर के साथ डिफरेंस क्या है, एक है, एक में एक जोड़ेंगे 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6। तो ये भी एक पर्टिकुलर रूल है कि हर नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस सेम है, और जब डिफरेंस सेम होता तो उस पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें एक रूल है कि मैं हर नंबर का स्क्वायर कर दूं। क्या करता हूं, स्क्वायर ऑफ ईच। तो आपको क्या आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड सो ऑन। अगर ऐसे लिखा हुआ आपको तो आप इस नंबर ऑफ सिस्टम को ऑब्जर्व करके बताएंगे कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल नेचुरल नंबर की हर एक नेचुरल लगातार नंबर का स्क्वायर है। आप देखो कह दे कि आगे के 3 नंबर लिखो तो ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर लिख दूंगा 81, 10 का स्क्वायर 100 लिख दूंगा, 11 का स्क्वायर कितना 121 लिख दूंगा। सो यू कैन राइट। ऐसे ही मैं इस नेचुरल नंबर के हर एक का अगर मैं क्यूब कर देता हूं, क्या कर देता हूं, क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125 एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन अगर ऐसा सेट दे रखा है कि वह 1 8 27 64 20 125 क्या है, तो ये नेचुरल नंबर का क्यूब है। तो ये एक आपके स्टैंडर्ड का सेट ऑफ नंबर है जिसमें एक पर्टिकुलर रूल कि हर नंबर का स्क्वायर या हर नंबर का क्यूब है। नेक्स्ट कुछ पैटर्न है जिन पैटर्न को बोला है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न का जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, लेट अस सपोज 12, और मैं आपको ये कहूं कि इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिखो तो कैसे लिखेंगे, इसको 1 into 12 लिख सकते हैं, 2 into 6 लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं, 4 into 3 लिख सकते हैं, 6 into 2 लिख सकते हैं। ये 12 को रिप्रेजेंट करने के पैटर्न है। मतलब जैसे मैं क्या करता हूं, एक लाइन बनाऊं ऐसे जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट लगा दिया तो ये 1 into 12 हो गया। अब मैं 2 लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन में जैसे मैं 6 डॉट 1 2 3 4 5 6, दूसरी में भी 1 2 3 4 5 6, तो 2 लाइन और हर लाइन में 6 डॉट, तो ये 2 into 6 का पैटर्न हो गया। अब मैं क्या करूं, 3 into 4, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये देखो एक कॉलम में 3 और एक रो में 4, तो 3 into 4 ये भी 12 के बराबर होगा। अब जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4,
अब देखो एक में 4 है, कितना है 3, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पैटर्न। कौन सा पैटर्न? रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न। दूसरा पैटर्न जो अपन आपके सिलेबस के हिसाब से ट्रायंगुलर। कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको अपन ट्रायंगल की शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कोई नंबर है 1, एक नंबर है 1 और 2, तो 1 प्लस 2। एक कोई नंबर है 1 2 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर 1 2 3, फिर 4, फिर 5, तो इनको लिख देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप पैटर्न। इनको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर पैटर्न। सो 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। These are the rectangular pattern। कुछ पैटर्न हैं जिनको अपन स्क्वायर पैटर्न बोलते हैं। कौन सा? स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न में जैसे कोई नंबर 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर। एक कोई नंबर है जैसे 1 2 2 इंटू 2 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 है। 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 है। फिर जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर, इसके बराबर होता है 9। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 दैट इज 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। तो these pattern are known as square pattern। So these are the some basic rule, and on the basis of these number pattern now we will do exercise 2E। उसमें कुछ specific आपको set of numbers दे रखा है, उनको keenly observe करके आपको ये देखना है कि ये नंबर कैसे लिखे हुए हैं, उसमें रूल आपको लिखना है। तो एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 50 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सिस्टम क्या दे रखा है? 8 13 18 23 28 33 देन 38 देन 43। देखिए आपको देखना है, आपको केवल 8 13 18 23। आप देखिए 13 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूं कितना आ रहा है? 5। 18 में से 13 माइनस करता हूं 5। 23 में से 18 माइनस करता हूं 5। इसका मतलब एवरी नेक्स्ट टर्म जो है, प्रीवियस टर्म में अगर मैं +5 ऐड कर देता हूं, जैसे 8 में +5 ऐड करूं तो 13 13 + 5 18 + 5 23 + 5 28, तो 28 में 5 ऐड करूंगा तो 33, 33 में 5 ऐड करूंगा तो 38, 33 में 5 ऐड करूंगा तो 43। मतलब एवरी नेक्स्ट टर्म जो है +5 करने पर अपने को मिल रही। तो ये सेट ऑफ नंबर है, और ये इसी प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? जिसमें डिफरेंस सेम हो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये स्पेशल सीरीज है। कौन सी है? इसको बोलते हैं स्पेशल सीरीज। नंबर ऑफ पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी भी नंबर ऑफ पैटर्न में अगर स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा है तो उसको अपन प्रोग्रेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। और ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो क्लास 10th में पूरा एक चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, देखो 56 54 52 और 50, ये 4 नंबर दे रखे। देखो 56 में से 2 माइनस करेंगे, 56 में से 2 माइनस करेंगे तो 54, 54 में से 2 माइनस करेंगे 52, 52 में से 2 माइनस करेंगे 50, 50 में से 2 माइनस करेंगे 48, तो 50 के बाद 48, 48 के बाद 46, 44, 42। आप चाहे जितने नंबर ले लो, मतलब एवरी पहली टर्म में से मैं 2 माइनस 2 करूं तो नेक्स्ट टर्म नंबर आ जाता है। देखिए देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटे? देखो 7 14 28 56। देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40,
7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56, 56 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 112, 112 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 224। मतलब हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे वाला नंबर आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रोग्रेशन है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कौन सी प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा है। ये क्लास 11th में आप इसको एज ए चैप्टर, पूरा चैप्टर पढ़ोगे इसका, ठीक है बेटा। यहाँ तो केवल एक लाइन दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसे 4 की बात करते हैं। 4 में क्या लिखा हुआ देखो, 25, 24, 23, 22। ये तो कितना इजी क्वेश्चन। हर पहले वाले नंबर में से 1 घटाते जाओ, 25 में से 1 घटाएंगे 24, 24 में से 1 23, 23 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 में से 21, 21 में 20, 20 में 1 19, 19 में 1 18 एंड सो। तो एक एक सब में से माइनस हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, उसके बाद में 5th नंबर जिसको इसने ई बोल रखा है, 5, 10, 15, 20। कितना इजी, पहले वाले में 5 ऐड करो, 5 5 10, 10 और 5 15, 5 20, 20 के बाद कितना आ जाएगा 25, 25 में 5 ऐड करेंगे 30। तो हर एक प्रीवियस टर्म में 5 ऐड कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट नंबर का प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस कितना है 5। तो +5 करेंगे तो आपका ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो आप 10th में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन है। नंबर पैटर्न बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये, इसको पढ़ने मजा आ रहा नहीं आ रहा आपको? हाँ, मजा ले लेके पढ़ना है चैप्टर को, है ना, दुखी होकर के नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। f इज 100, 94, 88, 88 के बाद में 82। देखिए बहुत कीमती देखेंगे, 100 में 6 जाएगा 94, 94 में से 6 जाएगा 88, 88 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 76, 76 में से 6 जाएगा तो 70। तो -6 अपन हर टर्म, हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से -6 कम करने पर आ रहा। ऐसे ही जी नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, 15 ml, फिर 25 ml, तो देखो एंड देन 35 ml। तो अपन क्या करें, 10 ml अगर प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं तो 10, 15, 10, 20, 20, 25, 25, 10, 35, 35, 10, 45 ml, 45, 10, 55 ml and so on. So this is the G. Then H देखिए, H जो है 1, 4, 9, 25 एंड 1, 4, 9, 16, 25। आप देखो ये अपन ने डिस्कस किया था कि अगर अपन नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 लिखें और हर एक का अगर अपन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो, तो ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का एक सिस्टम पैटर्न है। सो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन जोड़ना की गुणा भाग नहीं है, सिंपल आपको पैटर्न पता करना है कि क्या पैटर्न है। देन नेक्स्ट जैसे 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? आई। देखो अगर अपन 1, 2, 3, 4 लगातार नेचुरल नंबर लिखे, हर एक नंबर का अपन क्या कर दे, क्यूब कर दे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड सो ऑन। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। सो दीज आर द cube of natural number. So hope it is clear for you. Then एक next pattern दे रखा है Z, that is 0, 1, 3, 6, 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21 और 28। देखिए लगातार 0 में 1 ऐड करूंगा, 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 में 2 ऐड करूंगा 3, 3 में 4 ऐड करूंगा, देखो 3, अब देखो 3 में ऐड करूंगा कितना 3, तो ये 6 हो जाएगा। फिर देखो 6 में 4 ऐड करूंगा 10, फिर 10 में 5 ऐड करूंगा, मतलब
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 हैं, और +8 करूंगा तो 8 जा ये 36 हो जाएगा, फिर उसमें 9 ऐड करूंगा तो 45 हो जाएगा। इस तरीके से आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा। सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट द नंबर पैटर्न। सम मोर क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज learn the number pattern. Hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it. Thank you.